Hello student, welcome to the political world, political science, and we are on to the fourth chapter, class 9th. The fourth chapter is working of institution. As we always do, we crack the code in the name. So, institution is the only thing which I want to know. What are the institution? Working, everyone understand. So, institution, when I talk about politics, is nothing but a setup. It's a setup, meetings, organizations, and everything becomes an institution. For example, your parliament is an institution. Then your Lok Sabha, Rajya Sabha, everything which comes under there becomes an institution. Police system is an institution. And if I talk about a personal life, तो शादी भी एक institution ही है. So let's talk about the politics. No marriage and everything and all. See how your chapter begin in your textbook is with a word called office memorandum. It's an important word, but बहुत technical लगता है कि office memorandum होता क्या है? I'll tell you a very simple example. Keep that in mind. It becomes easy to remember what is this office memorandum. Have you guys ever received notice in your class that tomorrow is holiday or this is the function we need to celebrate and all? So that notice which comes to your class can be considered as an office memorandum or your school memorandum, जो आपको inform कर रहे हैं कि आपको करना क्या है, and then you're prepared over that. So we are going to talk about an office memorandum of August 13th, 1990. So what was so special about this memorandum? ये इतना important क्यों था जिसके बारे में हम discuss कर रहे हैं? Because इस memorandum में एक order था which stated that 27% job reservation should be there for SC and ST. Apart from that, socially and educationally backward classes SEBC should have reservation. Now SEBC को अगर हम देखा जाए तो ये socially और educationally है, पर मेरे हिसाब से या आपके हिसाब से आप हमेशा डिबेट करते हैं कि ये इकोनॉमिकल होना चाहिए, तो वो डिबेट हमेशा चलती रहेगी. We'll stick to the topic and we'll talk about कि exactly ये क्यों आया और कैसे implement हुआ. So देखते हैं. Only person who belong to this category, when I talk about this category, it means SC, ST and SEBC. They will have a reservation of seats. ये reservation will be there in your jobs, educational institutions. और देखिए इस पे ज़्यादा बात करते हैं ना, at this class, everyone knows कि it's the most debatable topic. Already we have done why should we have reservation of seats. तो ये उसी की बात करें कि reservation कब से implement हुआ. तो इसीलिए ज़्यादा important हो जाता है ये. ना अगर किसी भी कंट्री की बात करें तो ऑफिस मेमोरेंडम की बात हुई है. दे केम अप विद द नोटिस कि दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू हैव, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू, व्हिच इज रिजर्वेशन ऑफ सीट. नाउ हु आर द डिसीजन मेकर इन अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? एंड हियर यू कैन सी अ पिक्चर ऑफ जेंटलमैन. सी वी आर टॉकिंग अबाउट करंट लीडर्स. सो हियर ये रेस्पेक्टेबल हमारे प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है रामनाथ कोविंद. तो आप जानते हैं ये प्रेसिडेंट इज द हाईएस्ट पोजीशन इन आवर कंट्री. सो लॉजिकली ही इज द हेड ऑफ द स्टेट. एक और टेक्निकल चीज समझाता हूं आपको. वेन एवर वी टॉक अबाउट द हेड ऑफ द स्टेट, सम स्टूडेंट एंड सम पीपल गेट कंफ्यूज कि व्हेन आई टॉक अबाउट स्टेट, एम आई टॉकिंग अबाउट महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, गुजरात एंड ऑल, और व्हाट इज द स्टेट स्टैंड्स फॉर? सी व्हेन वी टॉक स्टेट, it is talking about a political sovereign boundary. तो इंडिया को यहाँ पे एज अ स्टेट कंसीडर किया जा रहा है. सो हेड ऑफ द स्टेट इज प्रेसिडेंट, और आप जानते हैं कि सारे हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी जो होगी वो इनके हाथ में होगी. इनका सिग्नेचर ही सारे बिल्स को लॉ बनाता है. तो ही बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. एंड who all are involved in the orders such as memorandums. वो इतना बड़ा डिसीजन है, वो कैसे लिया गया, कहाँ से शुरू हुआ. तो देखते हैं कि प्रेसिडेंट का रोल तो सिग्नेचर का है और लॉ बनाने का है, बट जो फेस है गवर्नमेंट का वो कौन होता है? एंड ही इज द फेस ऑफ टुडेज गवर्नमेंट, और ही इज नन अदर देन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी. Now, why we are talking about the Prime Minister? Because he is the head of the government, not the head of the state. तो जो elected representative हैं, and that government which is working in parliament is headed by Prime Minister. Now, parliament where we are talking about is a place where you have two houses, लोक सभा एंड राज्य सभा. ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, बट इसे देखो सीक्वेंशियली कैसे इन्होंने पिरोया है वो देखेंगे हम. एंड
Prime Minister must have the support of majority of Lok Sabha members to pass memorandum. ये इंटरेस्टिंग सी चीज है. अगर वो मेमोरेंडम है, वो नोटिस है और उसे फाइनली पास करना है, तो एक प्रोसीजर है, डिबेट्स होंगे, डिस्कशन होंगे, उसको बेस्ट से बेस्ट बनाएंगे, बट देन उसके बाद जो होगी वोटिंग ली जाएगी, एंड ही शुड गेट, और whoever the prime minister there should get the support of लोक सभा. मेजोरिटी मिलेगी, देन इट विल बिकम अ लॉ. आगे बढ़ के वो इंपॉर्टेंट लॉ बन जाएगा. नाउ हाउ डू वी गेट दिस रिजर्वेशन का सीट? हु टोल्ड दैट 27% सीट शुड बी रिजर्व्ड फॉर SC, ST and SC, BC? So the gentleman is none other than BP Mandal. Now, he was given a task in 1979 by the government of India, wherein he was appointed as a head of second backward classes commission. इस कमीशन को बहुत फेमस तरीके से जानते हैं कि ये मंडल कमीशन था, and it took 1 year to form his report, and in that report he made sure that who is poor, why he is poor and what is the solution. तो मुझे बताना है कि क्लास में कौन कैसा पढ़ रहा है, तो ये अगर अच्छा पढ़ रहा है तो इसके कैसे ज़्यादा नंबर आने चाहिए, ये अगर ठीक ठाक है तो इसे बेटर कैसे करना है, ये जो ओके हैं इन्हें अच्छा कैसे करना है. तो दैट सोल्यूशन वॉज ऑल्सो द पार्ट ऑफ हिज रिपोर्ट. एंड सोल्यूशन, यू रिमेंबर, ही टोल्ड हु इज पुअर, he gave all the data, and then he also gave the solution, and the biggest solution you know was reservation of seats. 27% कोटा जो था रिजर्वेशन का, वो इनका सोल्यूशन था. When this office memorandum was passed in India, it became a hot debatable topic. होना ही है, पहली बार somebody is talking about कि certain seat, वो भी 27% going to be reserved, and in educational institution, in government jobs and everywhere. So general category will obviously have some fear, क्योंकि आपका बेटा शेयर जा रहा है ना, तो आपको थोड़ा तो दुख होगा ही. अगर 100% आप खाओगे या 100% आपके लिए ओपन है, उसमें से कोई कहते नहीं 27 हटा दीजिए बस इतना आपके लिए, तो थोड़ा दुख होता है. तो वो शेयर जाने की वजह से ये डिबेटेबल टॉपिक बन गई. और देखिए दोनों पहलू देखते हैं कि व्हाट पीपल आर टॉकिंग अबाउट दिस रिजर्वेशन. सम वर सेइंग कि इट इज अनफेयर एज इट वुड डिनाई इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू दोज हु डिड नॉट बिलोंग टू बैकवर्ड कम्युनिटीज. जो जनरल कैटेगरी है खास करके वो ये कह रहे हैं कि आप अगर रिजर्वेशन रखते हो तो फिर ये इक्वल अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, आप किसी को ज्यादा शेयर दे रहे हो और जो बैकवर्ड क्लास में नहीं है उनको ऐसा कोई अपलिफ्टमेंट नहीं मिल रहा है. तो दे आर सेइंग कि दिस इज अनफेयर. अब एक सिंपल सा सवाल है कि हु विल से दैट इट इज फेयर? लॉजिकल है कि जो लोग SC, ST, OBC कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, द पीपल हु आर बैकवर्ड, द पीपल हु आर सप्रेस्ड फॉर मेनी ईयर्स, will definitely say कि this is the right move. But then in India, you remember, nothing is right till it comes from the final source, government. See here, others felt that this would give a fair opportunity for those communities who were so far had not adequately been represented in government employment and in parliament. तो ये SC, ST, OBC हैं, इन्हें कभी फेयर चांस मिला ही नहीं. तो फेयर चांस मिला नहीं है तो गिव देम दैट अपलिफ्टमेंट, मेक देम इक्वल टू यू, बिकॉज यू नेवर कंसीडर देम इक्वल. एक चीज याद रखिए बेटा, यू नेवर कंसीडर्ड SC, ST इक्वल टू योर स्टेटस एंड लेवल. So there has to be an equality, and for an equality you need to give them some upliftment, and after that when their voices will reach to the parliament, the things will change, and that's the reason why they were looking for this reservation. Now अब ये कंट्री है बॉस, आप देख रहे हो कि किस तरीके से गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गया है. अब गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी तो ये केस बन गया, एंड द केस वॉज पुट इनटू दिस ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. अब सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन क्या है? पूरी कंट्री है. तो ऐसे बड़े केस में सुप्रीम कोर्ट में ये केस चला जाता है और हियरिंग वहाँ पे हो रही है. अब ध्यान देना हाँ बेटा, गवर्नमेंट कैसे इन्वॉल्व हुई है, सुप्रीम कोर्ट कैसे इन्वॉल्व हो रहा है, लोग कैसे इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो सारे इंस्टीट्यूशन को आपको एक स्टोरी के थ्रू इन्होंने बता दिया है. तो जब केस फाइनली रिजॉल्व किया सुप्रीम कोर्ट ने, पर जो केस था उसका नाम इंटरेस्टिंग सा था. केस वॉज नोन एज इंदिरा स्वाहिनी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस.
अब ये केस सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में और फाइनली वर्डिक्ट आई 1992 में दैट दिस ऑर्डर इज वैलिड। तो इन्होंने मोहर लगा दी तो ऑर्डर वैलिड है, बस अब ये लागू हो जाएगा रिजर्वेशन। पर लागू कौन करेगा वो बहुत जरूरी होगा। Now let's talk about why should we have political institution। अभी हमने बात कर ली ये सारे इंस्टीट्यूशन ही है, जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव्स थे, लेजिस्लेचर्स की बात हुई, तो सारे इंस्टीट्यूशन सेट हुए हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई हमें इंस्टीट्यूशन चाहिए क्यों। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात और आसान सी है। सी पहले एक डेफिनेशन है जो 1 मार्क के लिए दे कैन आस्क यू कि व्हाट आर इंस्टीट्यूशन। इफ आई टॉक अबाउट वन सिंपल डेफिनेशन, इट सेज several arrangements are made in modern democracies which are known as institution। Now what are these arrangements? बस arrangement to take care of each and everything। एजुकेशन को ध्यान में रखने के लिए कुछ लोगों को बनाया गया है और वो एजुकेशन का ध्यान रखते हैं। जैसे CBSE है, वो एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, हमारे एजुकेशन के रिलेटेड है। NCERT है जो बुक्स करिकुलम देख रहा है, हमारा सिलेबस देख रहा है। तो ये सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है। पुलिस सिस्टम इंस्टीट्यूशन है, इनकम टैक्स और इलेक्शन कमीशन, सारी चीजें इंस्टीट्यूशन है। तो डेमोक्रेसी वर्क्स वेल व्हेन दीज इंस्टीट्यूशंस फंक्शंस प्रॉपरली एंड देयर फंक्शन शुड बी डिफाइंड क्लियरली। तब जाके डेमोक्रेसी बहुत अच्छा काम करता है। एंड टच वुड आवर कंट्री इज डूइंग गुड। नाउ वील गो अहेड एंड व्हाट हैपेंस इन इंस्टीट्यूशन। आप देखते ही हो हर जगह पे कोई रैंडमली डिसीजन ले सकता है क्या इंस्टीट्यूशन में? बिल्कुल नहीं ले सकता है, ये डेमोक्रेसी है। So all the institution will involve meeting, committees, routines and ये वक्त लेगा। Now when I say ना it will take time, people get tedious, थक जाते हैं, बहुत लंबा टाइम हो जाता है और आप जो हैं you are bounded to work under some rules and regulation। Now there is no free hand and that's the reason why working with the institution is little difficult। ये क्वेश्चन आता है तो बहुत ध्यान देना कि why working with institution is little tedious और difficult, क्योंकि restrictions हैं। You cannot take your whole and soul single decision। You have to look forward for debate and discussion। You need to come up with a better idea। और क्यों अच्छा होता है ये debate and discussion? I'll tell you। आप projects बनाते हो ना, तो if I tell you to make a single project, solo project, मैंने कह दिया कि आपको एक प्रोजेक्ट बनाना, आपने वो प्रोजेक्ट लिख लिया, आप प्रोजेक्ट बनाओगे, हाउ मच चांसेस इज देयर कि वो प्रोजेक्ट एक्सेप्शनली गुड और ग्रेट होगा? चांसेस हैं। द पीपल हु आर इंटरेस्टेड विल स्पेंड लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी एंड मनी टू मेक इट ब्यूटिफुल। बट देन हाउ अबाउट इफ आई गिव यू अ ग्रुप प्रोजेक्ट? Chances of group project being better than individual projects are very high because numerous brains are working over there। बहुत ज्यादा लोगों का दिमाग काम करेगा, क्रिटिसिज्म होगा, यू विल कम अप विद अ बेटर क्वालिटी, बेटर क्वांटिटी, रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे। यस इट इज गोइंग टू टेक टाइम। समबडी माइट नॉट लाइक इट, क्योंकि कुछ बॉसी कैरेक्टर्स होते हैं तो दे माइट नॉट लाइक इट, कुछ भी नहीं करते हैं बट देन शेयर उनका होता है। सो दैट्स व्हाट इंस्टीट्यूशंस आर बेटा। अब मीटिंग होंगी, कमिटी होंगी, रूटीन्स होगी, वक्त लेगा तो टीडीएस है, आप बाउंडेड हो तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, बट फायदा होता है, डिसीजन बड़ी अच्छी आती हैं और लोगों तक पहुंचती भी हैं, एक्सेप्टेबल होती है, एक्सेप्टेंस ज़्यादा होता है लोगों का ऐसी डिसीजंस को लेके। और हम किसी भी इंस्टीट्यूशन की बात करें, ना कि सिर्फ पार्लियामेंट की। नाउ सम डिलेज एंड कॉम्प्लिकेशंस आर वेरी यूजफुल। अब भी मैंने आपको समझाया ये डिले बहुत कामगार होते हैं। आपको अच्छे से अच्छे डिसीजन अगर चाहिए तो यू गिव देम टाइम। सो बैड डिसीजन जो होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा और गुड डिसीजन जो होगा थोड़ा वक्त लेगा बट आएगा। नाउ इंस्टीट्यूशन मेक इट डिफिकल्ट टू हैव अ गुड डिसीजंस टेकन वेरी क्विकली। ये थोड़ा सा सुनने में अच्छा लगता है कि यार गुड डिसीजन, बट वो क्विकली नहीं ले सकते हो आप, ये रिस्ट्रिक्शंस हैं। बट अच्छी बात है क्विकली नहीं ले रहे हो, क्योंकि वो गुड डिसीजन है तो उसको आने में जितना लेट आएगी उतनी अच्छा। एक कहावत है ना हिंदी में, सब्र का फल मीठा होता है, तो जितना सब्र करोगे उतना मीठा होगा। हाँ, सड़ने तक ना होना चाहिए, इतना डिले भी ना हो जाए डेमोक्रेसी में, वो थोड़े से प्रॉब्लम्स होते हैं। हम आगे पढ़ेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। अब आगे जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन के बारे में हमारे कंट्री की, और वो है हमारी पार्लियामेंट। दिस बिल्डिंग बहुत अमेजिंग बिल्डिंग है, बिल्कुल सर्कुलर है। प्लीज़ जाइए घूमने। दिल्ली में जब आप जाओगे अभी तो बहुत अच्छा सिस्टम है, यू आर अलाउड टू एंटर पार्लियामेंट विद परमिशन, सेम गोज विद प्रेसिडेंट हाउस एंड ऑल। तो बहुत अच्छे मैनेजमेंट हो चुका है अब, और स्टूडेंट्स के लिए खास करके एंट्री ईजी हो जाती है।
So that's a different case कि ये कैसा है क्या है, but ये कितना important is what we are going to talk about. See, every decision with a country is shaped through this building. This is our parliament. The discussion which are done here actually puts pressure on the government, and that's the reason why government works for your demands. जो आप demand raise करोगे वो यहाँ पे debate और discussion किए जाएंगे, and then they'll come up with a good solution and good law. If parliament is not in favor of the decision, then the government cannot go ahead and cannot implement the decision. ये अच्छी सी चीज़ है. अब आप लोग ये सोच रहे हो कि गवर्नमेंट तो हर एक रूल्स रेगुलेशन खुद पास करती है. बेटा नो, you know the elected representative are there sitting. So not everyone belong to one political party. There are opposition. So both are sitting there. So if you raise one thing, they will counter attack you. And you have to justify them, pacify them. Then only your bill will be passed and it will become a law. Randomly, abruptly, just because you are in power, you are ruling government, cannot pass anything. And that's why, because both of them sit together here, parliaments became the most important institution. हम इनके पावर की भी बात करेंगे. तो सबसे पहला सवाल ये आ जाता है कि पार्लियामेंट क्यों चाहिए आपको? सिंपल. An assembly of elected representative is called parliament. Just now I told you, whoever is elected is sitting in a parliament. And they are the supreme authority on behalf of us voters to make decision or to take decision for us. हमने हमारे behalf में उन्हें चुना है ना, elected representative है हमारे वो. At the state level, we do have this decision making body and we call them legislative assembly. State level पे हम इसे legislative assembly कहते हैं और कंट्री के लेवल पे हम इसे पार्लियामेंट कहते हैं. नेम मे वेरी फ्रॉम कंट्रीज टू कंट्रीज. आपको याद होगा रशियन रेवोल्यूशन में द पार्लियामेंट इज नोन एज ड्यूमा. इन नाजिज्म इट इज नोन एज रीस्टैग. इट डजंट मैटर. द वर्क इज व्हाट स्पीक्स आउट. सब कुछ वहीं से चलता है, पूरा देश वहीं से चलता है. नाउ अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट. पार्लियामेंट एक्सरसाइजेस पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ पीपल इन मैनी वेज. पार्लियामेंट जो है ना बेटा, वो लोगों का ऑर्गेनाइजेशन है और वो लोगों के बिहाफ पे काम कर रहा है. हाउ? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, ये इंपॉर्टेंस बताता है पार्लियामेंट का. व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट? फर्स्ट, पार्लियामेंट इज द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉ इन एनी कंट्री. यू रिमेंबर एट योर होम व्हेन योर फ्रेंड्स एंड इवन योर फादर्स फ्रेंड कम, मोस्ट ऑफ अस डू डिस्कस अबाउट पॉलिटिक्स कि नहीं बॉस ये रूल ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था. And they will come up with their own rule regarding everything, every senses. But then how much does these discussions matters? बेटा वो बस कॉफी टेबल पे ही ठीक लगते हैं, however good they are, because they will never become law till you sit in parliament and debate and discuss and come up with law. क्योंकि यहाँ पर जो डिबेट और डिस्कशन होगा सिर्फ वही कंट्री के लिए मैटर करेगा. Now those who run the government can take decision only when they get the support of parliament. देखिए, those who run the government, मतलब the people who are elected, who are sitting there, can only make decision till they are in power. ये नहीं कि एक बार आप अंदर बैठ गए उसके बाद कभी भी आप बाहर आ गए. मतलब 5 साल के बाद अगर आप बोलते हो कि अब बिना जीते मैं कुछ रूल बना सकता हूँ या मैं कुछ उसमें कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, तो वो आप नहीं कर सकते हो. पार्लियामेंट का सपोर्ट मतलब आपको अपोजिशन का सपोर्ट होना चाहिए और कैबिनेट के आप मेंबर होने चाहिए. एटलीस्ट आप लोकसभा के मेंबर होने चाहिए, तो ज़्यादा बड़ा इंपैक्ट होता है. पार्लियामेंट कंट्रोल्स ऑल द मनी दैट गवर्नमेंट हैव. कभी आपने सुना है कि बीजेपी के पास इतना पैसा है या कांग्रेस के पास इतना पैसा है? अगर सुना भी है तो वो पार्टी का फंड है. पर देश के पास कितना पैसा है? वो जो देश है ना बेटा, दैट कंट्री इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट पार्लियामेंट. सो होल मनी इज इन पार्लियामेंट. You might have heard across that parliament has passed this money bill, or this much amount of the money would be given to army, this much money would be given to Andhra, Orissa, Bihar, because they are having this typhoons and then you have floods. तो वो जो फंड रिलीफ फंड आता है वो कहाँ से आता है? वो कोई गवर्नमेंट अपनी जेब से नहीं दे रही है, वो पार्लियामेंट दे रहा है. तो पूरा पैसा जो होता है ना देश का, वो पार्लियामेंट के हाथ में होता है. नाउ Parliament is the highest forum of discussion and debate on public issues and national policies. किसी भी कंट्री में, जैसे कि मैंने कहा, आप कितने भी डिबेट्स में पार्टिसिपेट कर लो, किसी भी चैनल के डिबेट में पार्टिसिपेट कर लो, किसी भी बड़े स्कूल के डिबेट में पार्टिसिपेट करो, इट्स गोइंग टू जस्ट मैटर
in shaping few views and ideas, but never going to make change for the whole country. Yes, it might ignite or initiate, but discussion and debates happening in parliament will give you an outcome and that will matter. यहाँ का डिबेट डिस्कशन मैटर करेगा, बाकी कहीं का नहीं. अब आ जाते हैं पार्लियामेंट में ही, और हम पार्लियामेंट के उन दो घर की बात करते हैं, हाउसेस की बात करते हैं. आपने पहले भी सुना है, बिल्कुल वही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट जस्ट हैव अ रीकैप. द टू हाउसेस और द टू चैम्बर्स आर नथिंग बट लोकसभा एंड राज्यसभा. एक लोग डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है वो वहाँ बैठते हैं, उसे हम कहते हैं लोकसभा. एक सेकेंड हाउस है जिसे इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है और उसे हम कहते हैं राज्यसभा. इसके फंक्शंस थोड़े से स्पेशल हैं, जो कि स्टेट पार्टीज या पार्टीज हेड होते हैं और स्टेट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो राज्यसभा में बैठते हैं और इसे काउंसिल ऑफ स्टेट हाउस कहते हैं. लोकसभा को हम कहते हैं हाउस ऑफ पीपल, क्योंकि भाई हमने चुना इन लोगों को और ये लोग यहाँ पे बैठ के हमारे लिए डिसीजन ले रहे हैं, इसीलिए इसे हाउस ऑफ पीपल कहते हैं. देखिए, ये लोअर हाउस है, ये अपर हाउस है, बट ये लोअर हाउस जो है ना बेटा, वो ज़्यादा पावरफुल है और इजी याद रहेगा. एल फॉर लोकसभा, एल फॉर लोअर हाउस, इतना कोई रॉकेट साइंस जैसी चीज़ नहीं है. पर हम देखेंगे कि इनमें इंपॉर्टेंस कैसा है और पावरफुल क्यों है, क्या है. देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, बट ही और शी इज नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस. ये इंटरेस्टिंग सी बात है. तो प्रेसिडेंट अगर आप हैं तो आप ना तो लोकसभा में बैठते हो ना राज्यसभा में बैठते हो, इन द सेंस कि आप इन दो हाउसेस के रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो, ना तो आप स्टेट के हो ना आप इलेक्टेड हो. डायरेक्ट इलेक्शन प्रेसिडेंट का नहीं होता है, बट देन आप पार्लियामेंट के एक हिस्सा हो. तो पार्लियामेंट को जब मैं कहता हूं तो प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, तब जाके आपका एक पार्लियामेंट कंप्लीट होता है. बिकॉज इनका सिग्नेचर लगेगा ना बेटा, एसेट, इनका जब ऑटोग्राफ होता है ना, तब जाके वो बिल लॉ बनता है. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है. All laws made in the houses only after receiving the assent of the president. अभी मैंने ऑटोग्राफ की बात कही, ये बिल्कुल वही स्टेटमेंट है. Now understand, Indian Constitution also gave Rajya Sabha some special powers. But then, though Rajya Sabha is having special powers, still in most of the matter, Lok Sabha exercises the supreme power. मतलब इतना इनके पास स्पेशल पावर है, फिर भी ज़्यादा पावरफुल कौन है? वो है लोकसभा. अगर मैं इन शॉर्ट कहूँ ना बेटा कि क्यों लोकसभा को ज़्यादा पावरफुल कहते हैं, तो बात सिंपल सी है, बिकॉज इट इज़ पीपल्स ओन गवर्नमेंट, इलेक्टेड बाय पीपल. मेरे चुने हुए लोग लोकसभा में बैठ रहे हैं, मैंने उन्हें चुना है. उसके बाद राज्यसभा के लोगों को मैंने डायरेक्ट नहीं चुना है, इसीलिए लोकसभा ज़्यादा पावरफुल हो जाता है. बट देन योर टेक्स्ट बुक टॉक्स अबाउट 4 पॉइंट्स वेर इन दे से वाई लोकसभा इज मोर पावरफुल देन राज्यसभा. सो द फर्स्ट थिंग इज, एनी ऑर्डिनरी लॉ नीड टू बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेस. आप जानते हो कोई भी लॉ जो है ना बेटा, जो बिल है उसको लॉ बनने में जो वक्त लगता है वो दोनों हाउसेस से पास होगा. बट दोनों हाउसेस के जो मेंबर्स हैं उसके डिफरेंस मैटर करेगा. अगर किसी भी मैटर में यहाँ पे जॉइंट मीटिंग होती है तो जॉइंट मीटिंग में लोकसभा और राज्यसभा में जब डिस्कशन होगा और जब वोटिंग ली जाएगी तो किसके मेंबर ज़्यादा हैं? लोकसभा के. तो किसका डिसीजन प्रिवेल होगा? लोकसभा का. दैट मेक्स इट मोर पावरफुल देन राज्यसभा. लोकसभा एक्सरसाइजेस मोर पावर्स ऑन मनी मैटर. आप जानते हो कि जो भी मनी मैटर रिलेटेड चीज होती है वो लोकसभा में डिस्कस होगी. राज्यसभा में अगर वो जाती भी है ना, तो राज्यसभा ओनली हैज वन पावर, दे कैन डिले दैट बिल, मनी बिल, for not more than 14 days. And after 14 days, suppose they get the same bill back from the Lok Sabha, they have to sign or they have to pass. They can recommend changes, but it depends only on Lok Sabha whether they want to bring that change or not. तो अब ये दिखा देता है कि कितना पावरफुल हो जाता है लोकसभा. एंड लोकसभा कंट्रोल्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. तो जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जो कैबिनेट है, उन सबको लोकसभा कंट्रोल करता है. प्राइम मिनिस्टर जो है, जो पीपल्स फेस है, वो लोकसभा में बैठते हैं. ठीक है, तो ये बता देता है कि जो पीपल फेस है, जो पीपल रिप्रेजेंटेटिव है, वो लोकसभा है, इसीलिए वो ज़्यादा पावरफुल है कंपेयर टू राज्यसभा. नाउ by the time you keep revising and keep smiling, I'll come up with the next part of the chapter soon. Hello student, welcome back to the working of institution, and let's continue our chapter with political executive. See, understand, you know, you elected some people and they are sitting in parliament. Do you think every day work they are going to do,
or they are going to come on the ground and going to do that work? No. So at the ground level, the government, at every level, government have certain functionaries who actually make sure that day-to-day work is done smoothly and nicely. So these functionary we call them as executive. हमने लॉ बना लिया तो लॉ एग्जीक्यूट करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना. लेजिस्लेचर आर सिटिंग इन पार्लियामेंट टू मेक लॉज, but that those laws which they make need to be implemented and implementation need to be checked कि ग्राउंड लेवल पे बॉस कैसा हो रहा है. तो चेकिंग कोई और करता है और एग्जीक्यूशन कोई और करता है. तो जो एग्जीक्यूट कर रहा है उनको हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं. नाउ these executive in charge of the execution of all the policies which government has. Now see, plans and policies they develop in parliament, then those plans and policies implemented on the ground level by the executives. Now when we talk about executives, we have two types of executive. एक जो होते हैं we elect them and they become your political executive and they have a fixed term. क्या term है? 5 साल. Now if they enjoy the support of people, then it is 5 years. Then there are people who are appointed for a long time and we call them as permanent executive or civil services. ये जो civil services हैं, जो लोग यहाँ काम करते हैं, we call them as civil servant. ये IAS, IPS officers जो होते हैं बेटा, उनको हम कहते हैं civil servant. Now how is that they get to this position? See, these people give an exam conducted by Union Public Service Commission and this is the toughest examinations in India you have. And once you become a civil servant, you will enjoy the benefits which no one else in the country enjoys. सबसे पहली चीज तो you will be there for a long period of time, even though the ruling party will change, but you will still be there at your position. तो नेता आएंगे जाएंगे, but आपका जॉब वहाँ का वहीं रहेगा. Now all these officers work under political executive and assist them in carrying the day-to-day administration. You know why? Because if I am an elected representative, I might not be a subject matter expert. So I need a support. मुझे वो सब्जेक्ट आता नहीं है, तो मेरे लिए जो सपोर्ट होगा वो सिविल सर्वेंट्स प्रोवाइड करेंगे. आप जानते हो हमारी कंट्री में कैसा होता है, द मिनिस्टर्स. अब जो साइंस मिनिस्टर है बेटा, वो जरूरी नहीं कि वो डॉक्टर हो या इंजीनियर हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर, बट देन उसे कैबिनेट चलाना है, उसे वो पोजीशन चलानी है, उसे वो प्रोफाइल चलानी है. तो फिर वो क्या करेगा, जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो उन्हें गाइड करेंगे और उस हिसाब से फिर वो डिसीजंस आगे लेते जाएंगे. जैसे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, ज़रूरी नहीं है कि स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से स्पोर्ट्स मिनिस्टर हो, बट देन देयर इज दीज पीपल हु आर कॉल्ड एज सिविल सर्वेंट, दे विल हेल्प देम. बट अब हम ये कह रहे हैं कि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होते हैं सिविल सर्वेंट्स, नेता होते हैं जो प्लान्स एंड पॉलिसीज लाते हैं. तो दोनों में पावरफुल कौन है? आंसर बहुत सिंपल है, पावरफुल है नेता. और वन स्टेटमेंट, व्हाई? बिकॉज यू इलेक्टेड देम, इट्स योर चॉइस. और जो यूपीएससी एग्जाम दे के आए हैं उसे आपने चुना नहीं है. दे गिव एन रिटन एग्जामिनेशन एंड देन दे केम टू दैट पोजीशन. अब बड़ा प्रोफाइल क्यों हो जाता है नेता का? सी, यू एज एन IAS officer, you will give me plans and policies. I as an elected representative will choose the plan and policy and then those plans and policies will be implemented. अगर वो अच्छा हुआ तो who's the face? I am the face, नेता. और अगर कुछ गड़बड़ हुई, who is going to face the people? Again, नेता. तो मैं फेस हूं जो लोगों के लिए जाएगा. मतलब अगर मेरी डिसीजन अच्छी होती हैं तो वाहवाही मुझे मिलेगी और अगर डिसीजन खराब होती हैं तो भी मुझे ही लोगों को फेस करना है. IAS IPS ऑफिसर्स को नहीं, वो पर्दे के पीछे से काम करेंगे. सो मिनिस्टर्स टेक एडवाइस फ्रॉम दीज एक्सपर्ट्स एंड देन they take decision and that's the reason why final decision is taken by these elected representative and which makes them the more powerful than the permanent executive. Moving ahead we come to Prime Minister and Council of Ministers. ये इंडिया के सबसे बड़े फेस और प्रोफाइल होती है. सबसे फेमस लीडर कंट्री में जो होता है लोगों का, वो होता है प्राइम मिनिस्टर और उनकी पूरी बैकबोन, पूरी गवर्नमेंट जो चलती है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से चलती है. फिलहाल जो पिक्चर यहाँ पर है वो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और उनके करंट कैबिनेट की है. कैबिनेट जो है मेजर
लीडर्स का होता है और मेजर प्रोफाइल्स का होता है। नाउ अंडरस्टैंड, प्राइम मिनिस्टर जो होता है ना बेटा, वो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं कि ये बंदा खड़ा हो गया और कहे मैं प्राइम मिनिस्टर के लिए खड़ा हूँ, आप सब मुझे वोट कीजिए। वैसे हमने यही पढ़ा है कि इलेक्शन होगा, देन समवन विल बी अ फेस ऑफ द गवर्नमेंट एंड ही विल बी कॉल्ड एज अ प्राइम मिनिस्टर। तो देखते हैं यहाँ होता क्या। एक्चुअली प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर। अब ये कैसे होता है, आप शायद थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, बट देन बी केयरफुल, इट्स ईजी। President appoints the leader of the majority party or the coalition of party that commands the majority in Lok Sabha as Prime Minister। तो एक चीज याद रखिए, यहाँ पे कोलिशन गवर्नमेंट की भी बात की है। अगर मैं मेजोरिटी वोट जीता तो मैं फेमस पार्टी हूँ, मैं पार्टी का लीडर हूँ, तो मैं पार्टी का लीडर हूँ तो मुझे ऑफर मिलेगा प्रेसिडेंट से कि आप प्राइम मिनिस्टर बनिए, या फिर मेरी पार्टी ने खुद मुझे नॉमिनेट किया कि भाई ये हमारे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हैं तो आप इन्हें प्राइम मिनिस्टर बना दीजिए। बट अगर कोलेशन है, माई पार्टी प्लस 3, 4, 5 पार्टीज टुगेदर विनिंग देन इलेक्शंस, proving the majority, then there is a chances na that there could be a fight for the seat of prime minister position. So president gave this to the one who enjoys the majority of the support. In case no single party or alliance get majority, president appoints the person most likely to secure majority support. अगर किसी भी सिंगल पार्टी को या फिर इवन अलायंस को मेजॉरिटी नहीं मिलती है, इलेक्शंस हो चुके हैं, then president has got the power. He will see who is having the maximum support of the leaders and can prove majority, would be given the position of prime minister. Now prime minister does not have a fixed tenure. देखिए हमने हमेशा पढ़ा कि उनकी टेन्योर तो 5 साल की होती है, बस एक छोटी सी कंडीशन है, he need to enjoy the support of the ministers. उन्हें मेजॉरिटी बनाए रखनी होती है। अगर वो कोलिशन में है तो उनके लिए और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, बशर्त काम भी वो अच्छा करें ताकि लोगों का सपोर्ट भी रहे। आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑल्सो अपॉइंट्स द अदर मिनिस्टर विद एन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो कैबिनेट में जब इनका सिलेक्शन हुआ है प्राइम मिनिस्टर के तौर पर, तो इनसे कंसल्ट करके रामनाथ कोविंद जी ने, या फिर रामनाथ कोविंद जी ने इनसे कंसल्ट करके अपनी इनकी कैबिनेट, इनकी काउंसिल जो है वो सेलेक्ट की है। तो रोल प्रेसिडेंट का बहुत बड़ा होता है, आगे भी हम पढ़ने वाले हैं। प्राइम मिनिस्टर इज फ्री टू चूज द मिनिस्टर एज लॉन्ग एज दे आर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। नाउ एक इंटरेस्टिंग सी चीज है, प्राइम मिनिस्टर मोदी कैन नॉट पिक अप एनीवन फ्रॉम द कंट्री एंड से कि बॉस ये कल से आपका रेलवे मिनिस्टर है, या सुशील सर जो है आपके वो एजुकेशन मिनिस्टर है। नहीं हो सकता है। ये उनको ही कैबिनेट में जगह दे सकते हैं जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं, जिनको लोगों ने चुना है। पर एक क्लॉज यहां पर भी है, अच्छा वाला क्लॉज है, पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन ऑल्सो बिकम अ मिनिस्टर। मुझे जहां तक याद आ रहा है, हमारे इनसे पहले वाले प्राइम मिनिस्टर सरदार मनमोहन सिंह जी, वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं किए थे, बट फिर भी हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बने। शर्त ये थी कि जैसे ही वो कैबिनेट में आते हैं, उनको 6 महीने के अंदर कहीं ना कहीं किसी एक हाउस के अंदर नॉमिनेशन मिलना चाहिए। A person has to get elected to one of the house of the parliament within 6 months of appointment as a minister. तो मनमोहन सिंह के साथ ये चीज हुई थी, ये जो हम इस टॉपिक पे पढ़ रहे हैं। Now carrying ahead, the lords of the ministers and all, council of minister is an official name of the body that includes all the minister of different ranks. Council and cabinet is beta, it's a ring sort of a thing. Cabinet is the major 20 position and the council is the next other position. So it can, this council of minister can be of 40 to 60 major ministers, जिनके profiles बेटा होते हैं education, trade, commerce, external affairs and all the major positions whatever are there in our country, उन सब के ministers को बोलते हैं हम cabinet, and this whole group of people is known as council. Now cabinet ministers are the top leaders and minister of the state with independent charges are the in charge of smaller ministries. और ये जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होते हैं बेटा, वो कैबिनेट मिनिस्टर्स को असिस्ट करते हैं। देखिए रेलवे मिनिस्टर अगर कंट्री का है तो स्टेट के भी तो रेलवे मिनिस्टर्स हैं, तो उनका काम होता है असिस्ट करना ताकि बेटर पॉलिसीज आ सकें। और देखिए एज ए रेलवे मिनिस्टर अगर मैं हूँ तो मैं पूरी कंट्री की बात देखूंगा, पर मुझे नहीं पता ना कि कौन से 2 शहरों में कनेक्टिविटी नहीं है,
बट देन अगर आप वहाँ के हो तो आपको आइडिया होगा, तो यू विल कम अप विद दोज प्लान्स एंड पॉलिसीज एंड यू विल शेयर इट टू मी। वो असिस्टेंट ज़रूरी होता है किसी भी मिनिस्ट्री में, नॉट ओनली इन रेलवे। एवरी मिनिस्ट्री, जो भी मिनिस्टर्स बनेंगे दे विल हैव सेक्रेटरीज। ये सेक्रेटरीज बेटा ये आपके ये IAS ऑफिसर्स हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में। क्योंकि हमने पहले ही बात की थी ना, आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को नहीं चुनते हो, आप अपने नेता को चुनते हो, आप अपने लीडर को चुनते हो, और फिर उसे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है प्लान्स और पॉलिसीज़ के लिए, जो हमारे सेक्रेटरीज देते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे ज़रूरी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास कितनी ताकत है ना। ताकत आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि कितने पावरफुल हैं, कितने सुपर पावर्स हैं, बट यहाँ पे मिनिस्टर के पास एक होल्ड होती है, उसकी जो कुर्सी होती है, उसकी जो चेयर होती है, हम उसके पावर की बात कर रहे हैं। तो पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स, सी ही इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड इनके पास एनॉर्मस पावर है, बहुत ज़्यादा पावर्स हैं। टू बिगिन विद ही चेयर्स द कैबिनेट मीटिंग एंड ही इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो जब भी कैबिनेट की मीटिंग होगी ही इज़ द चेयरपर्सन मेन, एंड देन ही हेड्स द होल इलेक्टेड रूलिंग गवर्नमेंट। ये वहाँ के बॉस हैं। ही कोऑर्डिनेट्स द वर्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। अब अलग अलग डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, PWD डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है। हर एक डिपार्टमेंट में अगर कुछ कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है तो वो कोऑर्डिनेशन का काम भी प्राइम मिनिस्टर करते हैं। मिनिस्टर्स को प्रोफाइल देना भी इनका काम है, प्रोफाइल लेना भी इनका काम है। अगर मैं प्रोफाइल दे सकता हूं किसी मिनिस्टर को तो मैं उससे वो प्रोफाइल ले भी सकता हूं। एक मिनिस्टर को मैं 2 प्रोफाइल भी दे सकता हूं डिपेंडिंग ऑन the kind of work he is doing. So that is also my profile, and my decisions are actually final in any disagreement between the 2 departments. So if I am prime minister, I am considering in that way. तो अगर 2 डिपार्टमेंट्स लड़ रहे हैं या देयर इज सम कंफ्यूजन, तो फिर मैंने जो कह दिया या प्राइम मिनिस्टर ने जो कह दिया वो उस डिपार्टमेंट को मानना पड़ेगा। सो माई डिसीजंस विल बी फाइनल। आई एम कंसिडरिंग माई सेल्फ एज प्राइम मिनिस्टर। ओके, चलो यहीं पे कंसिडर कर लेते हैं। अहेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर्स ऑल्सो हैव सर्टन डिफरेंट पावर्स जो थोड़े से इनसे अलग रहेंगे। देखिए, माई जॉब इज ऑफ सुपरविजन ऑल्सो। सो इफ आई हैव अ रेलवे मिनिस्टर आई नीड टू सुपरवाइज। आपने देखा होगा कभी भी कोई बड़ा सा हादसा हो गया रेलवे वगैरह में तो द पीपल आस्क कि नहीं बस प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए। अरे प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली उससे इन्वॉल्व नहीं है, बट देन दैट इज कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, और दैट इज द पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि भाई फाइनल सुपरवाइजर जो है वो प्राइम मिनिस्टर ही है। ऑल द मिनिस्टर विल वर्क अंडर हिज लीडरशिप। प्राइम मिनिस्टर, एज आई सेड, have this distribution and redistribution of the portfolios, and he can also dismiss the ministers. सबसे ज़बरदस्त और ज़रूरी बात, प्राइम मिनिस्टर रिजाइंस, द होल गवर्नमेंट रिजाइंस। ये सबसे सुप्रीम सोर्स है। ये वो वाला आपका स्विच है घर का, मेन स्विच, पावर स्विच, जो अगर निकल गया तो पूरे घर की सारी बत्तियां बंद। तो इफ आई रिजाइन एज अ प्राइम मिनिस्टर देन होल ऑफ माई कैबिनेट एंड द गवर्नमेंट रिजाइंस, चाहे आप चाहो या ना चाहो। सो दिस आर दी पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। नाउ कम्स द हेड ऑफ द स्टेट, एंड हेड ऑफ द स्टेट इज प्रेसिडेंट। एज आई सेड, प्राइम मिनिस्टर इज द फेस ऑफ गवर्नमेंट एंड इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। पर कंट्री के हेड होते हैं प्रेसिडेंट, और इनके पावर्स उतने ही वाइड रेंजिंग है। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं। अगर इनके पावर आपको याद रखना है तो बस इतना याद रखिए कि बहुत ज़्यादा सा पावर्स इनके रिक्रूटमेंट में है। जैसे प्राइम मिनिस्टर को रिक्रूट करते हैं, कैबिनेट को रिक्रूट करते हैं, गवर्नर को करते हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें जैसे कि इलेक्शन कमिश्नर को। तो रिक्रूटमेंट याद रखोगे आप तो बहुत सारे पॉइंट्स आपके पास तैयार हो जाएंगे। Now, President supervises the overall functioning of political institutions in India. तो जितने इंस्टीट्यूशन उन सबके पॉलिटिकल हेड ये हैं। और सबसे ज़रूरी बात, any diplomatic relationship between the countries and all and deal is taking place, it always takes place on behalf of president. तो प्रेसिडेंट का साइन ही वहाँ पे काम आता है। Now, आगे बढ़ते हैं और पावर्स को चेक करते हैं। पहली बात तो प्राइम मिनिस्टर, जैसे कहा कि डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होते हैं, उन्हें प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं, बट प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी डायरेक्टली नहीं होता है। नोबडी इन आवर कंट्री एक्चुअली वोट्स फॉर प्रेसिडेंट, इनका इलेक्शन इनडायरेक्टली होता है। अ कैंडिडेट स्टैंडिंग फॉर द प्रेसिडेंट पोस्ट हैज़ टू गेट अ मेजॉरिटी ऑफ वोट्स फ्रॉम द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एमपी से उनको वोटिंग की जाती है, एंड द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली टू विन द इलेक्शन।
हर पॉलिटिकल पार्टी अपने कैंडिडेट को नॉमिनेट करता है. लाइक समवन नॉमिनेट्स मी टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, some other party will nominate person XYZ, and then these MLAs and MP who are elected, they will cast their vote. तो जिसको मेजोरिटी मिलेगा वो कंट्री का प्रेसिडेंट बनेगा. दिस इज हाउ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट टेक प्लेस. और ये इनडायरेक्ट इलेक्शन है, डायरेक्ट नहीं है. डायरेक्ट होता है वो जो रिप्रेजेंटेटिव को हम करते हैं. तो इनडायरेक्टली जब प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं उसके बाद उनके पास जो पावर्स होते हैं वो खुल के आते हैं. वो दिख ही रहे हैं आपको. सारी गवर्नमेंट की एक्टिविटी जैसे कि मैंने कहा विल टेक प्लेस ऑन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट. All laws and major policies and decisions of the government are issued in his or her name. फिलहाल तो his हैं, तो इनके नाम पे ही सारे पॉलिसीज वगैरह इशू होंगी. सारे अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो प्रेसिडेंट के नाम से ही किए जाते हैं. जैसे कि मैंने कहा ना, वो रिक्रूटमेंट आप याद रखना. सारी इंटरनेशनल ट्रीटीज एग्रीमेंट जो होंगे वो भी प्रेसिडेंट के नाम से होंगे. प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया. तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो है उन सबके सुप्रीम कमांडेंट कौन है? प्रेसिडेंट है. प्रेसिडेंट एक्सरसाइजेस ऑल दिस पावर ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. देखिए ये डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इनका बहुत पावर है, बट देन इंडिविजुअली ये किसी भी पावर का मिसयूज नहीं करते हैं. एक लिमिटेशन है. ही वर्क्स अंडर दिस गाइडेंस and the help of council of minister and prime minister. randomly abruptly कोई भी डिसीजन वो अपने हिसाब से नहीं लेंगे. I'm talking about president. now we come to judiciary. हमने कहा ना कि लॉ बनाता है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूट करते हैं एग्जीक्यूटिव्स. तो फिर जुडिशरी क्या करता है? जुडिशरी चेक्स द लॉ मेड आर एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन. सो जुडिशरी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है हमारे कंट्री का. अब हमारे पास जो जुडिशरी है वो सबसे मेन है. जो एपेक्स कोर्ट है उसे हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट. नाउ सुप्रीम कोर्ट इज फॉर द होल कंट्री. अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव हाई कोर्ट्स इन दी स्टेट्स एंड देन वी हैव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड द कोर्ट्स एट द लोकल लेवल. ये जो क्रिमिनल कोर्ट होते हैं, मैरिज कोर्ट होते हैं, ये सारे फौजदारी कोर्ट जो होते हैं वो लोकल लेवल पे होते हैं. नाउ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे होंगे, ताकि जितना कुछ लीगली काम हो नीचे से नीचे ख़त्म हो जाए तो ऊपर कम से कम रहे और इम्पॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट रहे. हाई कोर्ट्स जो इंडिया में है, कुछ स्टेट्स के कंबाइन हाई कोर्ट्स हैं, सारे स्टेट्स के पास हाई कोर्ट्स नहीं हैं. सुप्रीम कोर्ट एक ही है और पूरे देश के लिए है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट काइंड ऑफ केसेस डू वी हैव इन सुप्रीम कोर्ट. आपने बहुत सारी मूवी में कोर्ट सेटअप देखे होंगे. ऑनेस्टली सुप्रीम कोर्ट का सेटअप वैसा नहीं होता है. वहाँ पे कोई डिबेट ऐसे नहीं चलेगा, कोई ऐसे क्रिमिनल जाके नहीं खड़ा हो जाएगा, कोई वकील भी ऐसे जाके केस नहीं लड़ते हैं. इट्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट सेटअप. नाउ द केसेस विच कम्स टू सुप्रीम कोर्ट आर व्हेनेवर देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन सिटीजन ऑफ अ कंट्री. आपने सुना होगा ना, वी हैव अ क्वासी जुडिशियल सिस्टम. So अगर I am not happy with the decision of High Court, I can go up to the Supreme Court. So those cases which goes up there are fought and then they are given the legal advice. वर्डिक्ट भी जो है सुप्रीम कोर्ट जो देगा वो फाइनल होगा. वर्डिक्ट ज़्यादातर अगर उन्हें सेम रखनी है तो दे से कि फॉलो व्हाट हाई कोर्ट हैज सेड. दे विल जस्ट गो अहेड विद द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट. तो ऐसे इस तरीके को डील किया जाता है. नाउ बिटवीन द सिटीजन एंड द गवर्नमेंट. So if I am a citizen, I am not happy with the government, state government or a central government, I can put up a case. अब वो केस कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में. Between two or more state government, दो स्टेट लड़ाई कर रही हैं, कावेरी वाटर डिस्प्यूट, तो कर्नाटका लड़ रहा है, तमिलनाडु लड़ रहे हैं, दोनों स्टेट्स फाइट कर रहे हैं, तो वो हमारे दो गवर्नमेंट लड़ रही है, स्टेट गवर्नमेंट. ये भी हो सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस सेंटर गवर्नमेंट, तो यूनियन गवर्नमेंट, ये भी केसेस सुप्रीम कोर्ट में आते हैं. तो दीज आर द केसेस. ये 3 मार्क के लिए बेटा बस इतना सही आएगा आपको. चलिए आगे बढ़ते हैं और इंपॉर्टेंस देखते हैं हमारी जुडिशरी का. सी, गो अहेड विद दीज लाइन्स बिकॉज दीज लाइन विल वर्क एज क्वेश्चन एंड देन द आंसर वुड बी बेस्ड ऑन योर जजमेंट ऑफ दीज क्वेश्चन. Independence of judiciary means that it is not under the control of legislature or executive. They'll ask you, why is it important to have independent judicial system? Boss, अगर आपका judiciary is under your executive and your legislature's influence, then do you think are they doing just justifying their work? जो प्रोफाइल है वो जस्टिफाई कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो अंडर इन्फ्लुएंस है.
आपका इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना बहुत जरूरी है। जज अगर किसी भी नेता से प्रभावित है या फिर किसी भी एग्जीक्यूटिव से प्रभावित है तो वो उसके डिसीजन पर दिखेगा। इसीलिए हमारी जो जुडिशरी है वो एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंट है, बिकॉज नो पॉलिटिकल पार्टी एवर एक्चुअली सेज कि लेट दिस पर्सन बिकम अ जज। दे माइट रिकमेंड, बट देन जुडिशरी का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो एब्सोल्यूट डिफरेंट है और इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटरवेनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव एज वेल एज लेजिस्लेचर। तो हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, इसीलिए वो बहुत पावरफुल है और किसी भी पार्टी के बेसिस पर जुडिशरी काम नहीं करती है। Now, judges of Supreme Court and High Court are appointed by the President. We have already seen that appointment वाले पार्ट में President की President का जो powers है उसमें हमारे appointment आ जाता है। Yes, advice is taken from the Prime Minister and the Chief Justice of the Supreme Court, जो उस वक्त के होंगे उनसे consult करके। A judge can be removed only by impeachment motion. आज तक इंडिया में ऐसा नहीं हुआ है। देखिए, प्रेसिडेंट को आप उनकी पोजीशन से हटा सकते हो इम्पीचमेंट के थ्रू, वैसे ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को आप इम्पीचमेंट के थ्रू ही हटा सकते हो। और ये बहुत बड़ी प्रोसीजर है। व्हेन यू हैव टू गिव इन रिटन 2/3 मेंबर का सपोर्ट होना चाहिए कि द जुडिशरी और द सुप्रीम कोर्ट का जज इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली और इज नॉट डूइंग हिज वर्क एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन और इज नॉट जस्टिफाइंग द प्रोफाइल। तब जाकर डिस्कशन होंगे, डिबेट होंगे और फाइनली उन्हें निकाला जाएगा। और ये इंडिया में आज तक हुआ नहीं है। ये सबसे अच्छी चीज़ है। 2/3 मेंबर्स उनके फेवर में वोट करते हैं निकालने के लिए, तभी निकाले जा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं एंड फाइंड इट आउट दैट जुडिशरी इन इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड। यस, इट इज द मोस्ट पावरफुल जुडिशरी इन द वर्ल्ड, क्योंकि इनका बहुत सिंपल सा मानना है। हमने लेवल्स जो है वो नीचे तक रखे हैं। जितना ज़्यादा हम डेमोक्रेटिक रहेंगे, लोवेस्ट लेवल तक रहेंगे, उतने ज़्यादा अच्छे से केसेस को सॉल्व कर पाएंगे और जल्दी कर पाएंगे। पर हाँ, उसके ड्रॉबैक्स भी हैं, वो बात की बात है। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री। सी, इंटरप्रिटेशन, कॉन्स्टिट्यूशन इज देयर, now nobody, even the netas don't know कि what is there in the constitution। और वो कौन जानता है? वो सिर्फ जानते हैं कोर्ट्स। तो अगर कोई लॉ पास होता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है, या कोई ऐसी एक्ट गवर्नमेंट ने की है या पुलिस ने की है या किसी इंस्टीट्यूशन ने की है विच इज नॉट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, देन द कोर्ट विल हैव देयर से। यू माइट हैव कम अक्रॉस मेनी टाइम that this government is being asked to justify their act by Supreme Court कि why this had happened. So Supreme Court can question the government, can question the institution over their functioning. That shows कि how powerful they are. We are independent and powerful judiciary. Now they can determine the constitution validity of any legislature or action of the executive in the country when it is challenged before them. देखिए, बहुत सिंपल सा है। मुझे अगर कोई शिकायत आती है किसी लॉ के अगेंस्ट, या फिर मुझे खुद लगता है, आई एम अ जुडिशरी हियर, या मुझे खुद लगता है कि ये लॉ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है, या ये जो फंक्शनिंग इंस्टीट्यूशन के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है, और वो चैलेंज अगर लेजिस्लेचर के अगेंस्ट हो या एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट हो, देन आई कैन स्पीक, आई कैन गिव माई वर्डिक्ट। ये उनका पावर है और इसे हम कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। मान लीजिए हम लेजिस्लेचर है, वी पास्ड अ लॉ बट वी आर सेल्फ आर नॉट श्योर कि वेदर दिस इज एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वी विल आस्क कोर्ट कि प्लीज चेक दिस लॉ विच वी हैव मेड, इज इट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप देखते हैं ना क्रिकेट थर्ड अंपायर रिव्यू कि वो देख लीजिए आउट है कि नहीं है, या जो भी डिसीजन है, तो वो रिव्यू के लिए दिया है। दिस इज द डिसीजन वी हैव टेकन, द लॉ वी हैव मेड एंड आई वांट योर रिव्यू प्लीज। आप बताइए क्या है। अगर आप कहते हो कि ये जुडिशियल जो वर्डिक्ट आई है आपकी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हम इसे लागू कर देंगे, तो ये बता देता है कि कितना इंपॉर्टेंट आप हो और कितने पावरफुल आप हो। सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया हैज ऑल्सो रूल्ड दैट द कोर और द बेस प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज बाय पार्लियामेंट। होता है ना बेटा कि आप इलेक्ट होकर पार्लियामेंट में आते हो और फिर आप मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल देते हो, राइट? रॉबर्ट मुगाबे यूज्ड टू डू, ज़ानू पीएफ पार्टी। सी, सुप्रीम कोर्ट और आर जुडिशरी हैड मेड श्योर दैट दिस नेवर हैपेंस। जो पावर में भी होगा ना,
वो भी जो बेसिक कोर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसको नहीं बदल पाएगा। यस, अमेंडमेंट्स आर पॉसिबल, वो बेटर हैं, सुधार के लिए चेंजेस जरूरी होते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं होता कि सब कुछ ही बदल दो। तो बेसिक कोर स्ट्रक्चर आप नहीं बदल सकते हो। नाउ वी गो अहेड एंड टॉक अबाउट लिटिल मोर ऑफ जुडिशरी। Powers and the independence of Indian judiciaries allow it to act as the guardian of the fundamental rights. Question बनता है कि judiciary in India work as an guardian of the fundamental rights or act as an guardian of the fundamental rights. आपके fundamental rights हैं, हमारे fundamental rights हैं, मतलब हम आप एक ही देश के हैं। तो अगर my fundamental rights are breached, then who is going to guide or who is going to protect that my rights should not be breached? देखिए, कुछ इंस्टीट्यूशन बहुत पावरफुल होते हैं, जैसे पुलिस है, बहुत पावरफुल है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, बहुत पावरफुल है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट बहुत पावरफुल हो गया। हो सकता है ना कि हमारी राइट्स को ब्रीच करें, मेरे जो हक है वो छीने या डेंट करें। तो व्हाट इज देयर, वेयर कैन आई गो? अगर आपको पुलिस परेशान करती है तो आप कहाँ जाओगे? आप जाओगे कोर्ट, क्योंकि हमारे जो राइट्स हैं उनको गार्ड करता है कोर्ट सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम हमारे देश का। एनीवन कैन अप्रोच टू द कोर्ट इफ पब्लिक इंटरेस्ट इज हर्ट बाय द एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। मान लीजिए अगर मेरी राइट्स पे कुछ नुकसान हो रहा है या मुझे मेरी राइट्स नहीं मिल रही हैं, तो ये जरूरी नहीं कि मैं ही कोर्ट जाऊं ऑन माई बिहाफ और एनीवन विद इन द कंट्री फील्स कि यस इन दैट रीजन the police or the government is not looking after the rights, fundamental rights of the citizen, then I can file a case. और हम इसे कहते हैं public interest litigation। कहीं पर भी मुझे लगेगा मेरे देशवासियों का कोई भी हक छीना जा रहा है गवर्नमेंट द्वारा या उनके किसी इंस्टीट्यूशन द्वारा, तो मैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर सकता हूं, केस कर सकता हूं, और हमारी जुडिशरी उस पर वर्क करेगी। And that is why Supreme Court act as a guardian of your fundamental rights. Now this was our chapter, working of our institution. Please revise it and keep smiling. Take care.